हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम करने वाले हैं चर्चा कि स्कैम में आपको कैसे और लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमारी यही कोशिश है कि कम से कम अगर हम आपको पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम आपका जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है वो कोई आपसे गलत तरीके से छीन करके ना ले जाए। और यही हमारी कोशिश है और आप हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं और साथ में मैनेज बाय सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स। तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक रिसर्च इंफॉर्मेशन है और उसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी गलतियों से सीख करके लोगों के लिए स्पेसिमेन नहीं बनना। जो हम आपको बता रहे हैं उसको अपने दिमाग में बैठाइए और उस चीज को होने ना दें। ये याद रखें, जो स्कैमस्टर होते हैं उनका दिमाग काफी तेज होता है, इसलिए उनसे अगर आपने एक स्टेप आगे रहना है तो आपको करंट स्कैम्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ऑनगोइंग ट्रेंड है जिससे कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? तो हम बढ़ते हैं इस एपिसोड नंबर 4 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस क्लोनिंग। इसका मतलब है कि आपकी आवाज का स्पेसिमेन लेकर के वो इस तरह की आवाजें बना सकते हैं जिससे आपके नियर एंड डियर वंस ये सोचें कि शायद आप ही बोल रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और उसका बाद में वीडियो क्लिप के बाद उसको एक्सप्लेन फर्दर करूंगा। It's a phone call John Bridges will never forget. I said, "What's wrong? What's wrong?" She goes, "I've had an accident and I need your help." His daughter panicked and crying before another voice gets on the line. He goes, "I'm wanting to give your daughter back to you, but I need some cash." Bridges says he didn't end up giving money to the scammer thanks to his quick-thinking wife who called their actual daughter to confirm she wasn't being held hostage, but he got close, even grabbing cash from home and driving it to a meetup location. When I first heard my daughter's voice, I mean, it was my daughter's voice. It convinced me that that was her. Calls like this have the Federal Trade Commission sounding the alarm this month, warning of advancing artificial intelligence used to simulate someone's voice in imposter scams, the most commonly reported fraud in 2022, with losses jumping to $2.6 billion last year. It's critical that people are aware this technology is out there and that it's really very good. Voice cloning isn't a new concept, but it's becoming more accessible, accurate, and easier to use thanks to AI. Cybersecurity expert Tiago Enriquez, who says he's now seeing insurance claims for this kind of fraud, showed us just how easy it is. We're going to try and find some audio samples of you. He pulled videos from my social media and uploaded clips to one of a growing number of voice cloning programs. So it's literally a matter of dragging and dropping audio clips in this program. That's it. Then came typing what to say, and with the click of a button, I already tried to call the bureau. It was weird no one answered. That's pretty good. but could I fool a colleague with it? Hello? Crazy busy. I forgot my corporate card. Oh no! Can I borrow yours real quick? I just need to pay for a few things. I'll get the receipts. It wasn't perfect. There were delays, and some sentences sounded more genuine than others, but I gotta run out and get my wallet. it worked. Thank you so much. Call you in a bit. My colleague later stunned by the generated audio's accuracy. I pride myself on never falling for that stuff. Experts say to make sure you don't fall for it, be skeptical whenever asked for money in any form. Don't rely on the caller ID. Those can be faked. And even if it sounds like a loved one calling, hang up and call the person yourself. Are we going to see an increase in this sort of thing? I believe we are. As attackers get more familiar with these technologies, what they can do with it, how to operate them, we are going to see an increase in scam attacks. New technology requiring new lines of defense. Emily Ikeda, NBC News, New York. ये वाला वीडियो NBC न्यूज की कर्टसी से है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आपके वॉइस सैंपल्स को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो कोई भी ऑडियो क्लिप बना सकते हैं। आपने सबने चैट जीपीटी के बारे में सुना ही है और इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के लोग गलत काम भी कर सकते हैं। याद रखें, टेक्नोलॉजी डबल एज वेपन है।
उसको सही तरीके से भी यूज किया जा सकता है और गलत तरीके से। जैसे कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी को हम सही तरीके में यूज करें तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और गलत तरीके से यूज करें तो हिरोशिमा नागासाकी के एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। तो टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है वो यूजर पे डिपेंडेंट है, और आपने क्या करना है वो आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाया कि आपके वॉइस सैंपल्स को लेकर के वो इस तरह का ऑडियो मैसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे लगता है कि शायद हो सकता है कि आप किडनैप हो गई हैं, और आपके पेरेंट्स को फोन करते हैं और उनसे पैसे का डिमांड करते हैं। तो ये इस वीडियो क्लिप में उसके फादर ने जो काम किया वो सही था कि उन्होंने इमीडिएटली अपनी डॉटर को कॉल किया और पूछा कि बेटा तुम ठीक हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम ठीक हैं। तो तब उनको पता चला कि कोई उनको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। अब हम जानेंगे कि कैसे और हम का इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इसमें बच सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कैम बेसिकली आपके पास टाइम नहीं देगा। टाइम वो बोलेंगे बेटी आपकी किडनैप है, जल्दी से पैसे लेकर के आओ। अब जब बच्चे का मामला होता है तो पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, तो ये इमोशनल अटैचमेंट जो है उसका वो लोग फायदा उठाते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने पैनिक नहीं करना, क्योंकि जहां पे आप पैनिक हुए और आप फंस गए। और इसके लिए वो टारगेट पेरेंट्स को कर सकते हैं, क्योंकि पैसा किसके पास है? पेरेंट्स के पास है। पेरेंट्स को बोला बच्चा किडनैप है, आप उसकी आवाज सुनिए, और जैसे ही वो सुनेगा तो उसको लगेगा डर के कहीं बच्चे को कुछ कर ना दे, और उसको साथ ही बोल देंगे कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना, तो और भी डर जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कैम से बच सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे आंख मूंद करके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो मन में आया वो फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं करनी, या ऑडियो क्लिप्स या वीडियोस नहीं करने, क्योंकि ये जो वॉइस सैंपलिंग है वो सोशल मीडिया से ही वो लोग पिकअप करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपने सोशल मीडिया का अपलोडिंग पे ध्यान देना है। एक चोर जो चोरी कर रहा था इंडिया के मेन सिटी में, तो उसको पूछा गया कि आपको कैसे पता कि ये वाला घर खाली है? तो बोला मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि ये लोग जा रहे हैं गोवा में, और वहां पे एक हफ्ते के लिए वहां पे एंजॉय करने वाले हैं। और जैसे ही इन्होंने गोवा की फोटोग्राफ्स डाली तो मैं समझ गया कि ये लोग घर से निकल गए हैं और हमने चोरी का प्लान कर लिया। तो सोशल मीडिया अगेन अ डबल एज वेपन, लोगों को इंफॉर्मेशन देता है पर साथ में गलत एलिमेंट्स को भी इंफॉर्मेशन देता है, और आपने इंश्योर करना है कि यू डोंट फॉल फॉर इट। शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी के लिए आप अपनी जिंदगी को दांव पर ना लगाएं। अगर आप कहीं पे बाहर हैं तो अपने पेरेंट्स, अपने नियर एंड डियर वंस को इन्फॉर्म रखें कि मैं यहां पे जा रहा हूं एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर दिस टाइम और दैट टाइम। फॉलो द बीटन पाथ। अगर आप पढ़ने के लिए बाहर कॉलेज गए हैं तो प्रेफरेंस यही है कि अपना पढ़ाई करो और वहां से आकर के अपने हॉस्टल में जाओ। पर वही अगर आप बीटन पाथ नहीं फॉलो करोगे, आप अपना कॉलेज अटेंड करके जा रहे हो कहीं पे पब में या कहीं गलत जगह पे, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप स्कैम होने के शिकार बन सकते हैं। गेन टाइम, जो भी आपको कॉलर है आप उसके साथ बातचीत करते हो, गेन टाइम करें, और आपको ऑडियो सुनने से पता चल जाएगा कि उसके अंदर काफी ब्रेक्स हैं। हो सकता है कि वो इंटरकनेक्टेड ना हो। आस्क हिम सम डिफरेंट क्वेश्चन जिसके लिए वो तैयार ना हो, क्योंकि आपने जो पिछली न्यूज रिपोर्ट थी उसमें यही देखा कि ऑडियो क्लिप्स के अंदर कहीं पे ब्रेक था, कहीं पे नॉन रिलेटेड कंटेंट होने की वजह से वो आदमी पकड़ पाया कि उसकी बेटी को किडनैप नहीं किया, बेहतर है मैं उसको कॉल करके कंफर्म कर लूं। अवॉइड पैनिक तभी हो सकता है जैसे कि फादर साहब को फोन आया कि आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, फादर साहब ने फोन लगाया और बेटी ने पहली कॉल में पिकअप कर लिया, तो वो पैनिक नहीं होने देगा। पर यहां पे बच्चों की भी जिम्मेवारी है कि जब उनके पेरेंट्स फोन करें तो दे शुड पिकअप द कॉल इन द फर्स्ट इंस्टेंस। नहीं तो आजकल फोन हाथ में ही होता है, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकते हैं कि आई एम बिजी या समथिंग ऑफ दिस नेचर, जिससे सामने वाले को पता चल जाए कि बच्चा इसलिए नहीं उठा रहा कि शायद हो सकता है क्लास में हो या कहीं और है। लास्टली कॉल पर्सनली। उससे क्या है, अगर बच्चे ने फोन उठा लिया तो आपको यह गारंटेड है कि बच्चा ठीक है और जो आपके पास फोन कॉल आया था वो
फेक था, पर इसमें तभी पॉसिबिलिटी होगा अगर अदर पार्टी पिक्स अप द फोन एट द फर्स्ट इंस्टेंस और मे बी इन शॉर्ट एज पॉसिबल टाइम फ्रेम। अगर इन चीजों का आप अपने बच्चों को भी बताएंगे तो ये उनको भी तैयार करेगा कि वो स्कैम में ना फंसे। हमारी यही कोशिश है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा स्कैम्स हैं या और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहें, सो दैट यू बिकम एन इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, इन्वेस्टर और अ कॉमन मैन जो कि जिंदगी लोगों की बदल सकता है। रिमेंबर टू सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये हमारा मोरल बूस्ट करता है कि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो का लिंक भेजें क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बड़े तरीके से इंडिया और वर्ल्ड में भी आ रहा है और रादर आ चुका है। सिर्फ हमें जागने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं कि स्कैमस्टर्स को आप गले से पकड़ करके उनको खुद स्कैम कर सकते हैं? और उसके लिए हमने एपिसोड 3 बनाया था जिसमें आप स्कैमस्टर्स को कैसे स्कैम कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताया था। लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर इंट्राडे में आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ फर्स्ट 1 आवर ऑफ द डे का इस्तेमाल करते हैं, कम समय के लिए ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट अप टू 30% का हो जाता है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, रिवार्ड्स बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस छोटा होता है। और अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो निफ्टी टिप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स, और उसमें भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कम समय ज्यादा मुनाफा, जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ही आपका लॉस होने का चांस है। इसलिए याद रखें, ट्रेड लेस बट ट्रेड एक्यूरेटली। ज्वाइन विद इंडियन शेयर टिप्स, अभी उठाएं फोन और हमारे से बातचीत करें। आपका कोई भी सवाल है कमेंट्स के थ्रू आप लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे ताकि और भी लोग जागृत हो सके। थैंक यू।